अच्छा, next question number 17. There are n arithmetic means between 5 and 32 such that the ratio of the third and seventh arithmetic mean is 7:13. कहते हैं कि find the value of n. तो सबसे पहले n arithmetic means between 5 and 32 है. So let a1, a2, a3 up to an or n arithmetic means between 5 and 32. Now 5 और 32 के दरमियान ये n arithmetic means. Now we know that d is equals to b minus a divided by n plus 1. ये inserting in arithmetic means between a and b, then d is equals to b minus a divided by n plus 1, where this n is the number of arithmetic means. ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये उधर हम डिराइव कर चुके हैं. इसमें वैल्यूज पुट करें. What is b? 32 minus a is 5. n फाइंड करना है. This is required. n plus 1 implies that d is equals to 27 divided by n plus 1. अब अगर हमें d मिल जाए d, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके हमें यहाँ से n मिल जाता है. अब d फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक और कंडीशन गिवन है कि द रेशो ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ अरिथमेटिक मीन इज 7:13. आल्सो गिवन दैट, यहाँ पर आप लिख दे कि आल्सो given that the ratio of the third and seventh arithmetic mean is 7:13. This is equals to a3 by a7 equals to 7 by 13. Cross multiplication आप कर लेंगे. 13 a3 is equals to 7 a7. लेकिन a3 बराबर है a प्लस 3d के और a7 बराबर है a प्लस 7d. एज ए इन इक्वल्स टू a प्लस nd के बराबर. तो इसमें आप 13 पुट करेंगे, a प्लस 13d आ जाएगा 13, और 7 के लिए a प्लस 7d आ जाता है. दिस इम्प्लाइज इट प्लॉट कर लें. 13a plus 13 multiplied by, this is 3, this is not 13, this is 3a3 है. 13 multiplied by 3 39d. 7 मल्टीप्लाई करें, 7a plus 7 multiplied by 7 49d. ये यहाँ शिफ्ट करो, ये उधर शिफ्ट करो. 13a minus 7a 6a equals to 39d उधर शिफ्ट होगा minus 39d plus 49d, तो 10d आ जाता है. लेकिन a की वैल्यू उधर है, हमारे पास 5 है, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 5 equals to 10d implies that 30 equals to 10d. This implies that dividing both sides by 10 d is equals to 3. d की ये वैल्यू अब इक्वेशन 1 में पुट करें. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर आ जाएगा 3 is equals to 27 divided by n plus 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो n plus 7 is equals to 27 by 3 आ जाएगा. n plus 1 equals to 9 and n is equals to 1 उस साइड पे शिफ्ट करें, n equals to 8. तो ये फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया. अच्छा, द अरिथमेटिक सीरीज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक सीरीज. The sum of terms of an arithmetic progression is called arithmetic series. With every sequence is associated with a series. अब arithmetic sequence के terms को जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम arithmetic series कहते हैं. ठीक है. Let a in be an arithmetic sequence, then the sum of n terms of this arithmetic sequence a1 plus a2 plus a3 plus up to an, which is equals to sigma notation में हमने लिख दिया k start from 1 up to n a k. This is called arithmetic series.
अब देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स नाउ द n terms a1, the second term is a1 plus d, the third term is a1 plus 2d. Similarly, the nth term is a1 plus n minus 1 into d. If these are the n terms of an arithmetic progression, चूंकि arithmetic progression के terms इस form के होते हैं, so if these are the n terms of arithmetic progression, then their sum, इस n से हम represent करते हैं the sum of n terms. n means s stands for summation और n terms के summation है, तो यहाँ हम s n लिखते हैं और लिखते हम कैसे हैं a1 plus d, a1 plus 2d plus up to nth term is a1 plus n minus 1 into d. अब इसको सिग्मा नोटेशन में sn सिग्मा नोटेशन में हमने लिखना है k starts from 1 ends on n, चूंकि n terms है, and the general term is a1 plus k minus 1 into d. ये इसका सिग्मा नोटेशन summation is in the form of sigma notation. This is called arithmetic series. अब arithmetic series या arithmetic sequence के n terms का summation find कैसे किया जाता है, यहाँ पर in the form of a theorem है कि the sum of first n terms of an arithmetic series, ये एक theorem है. So a theorem statement is for an arithmetic progression an, the sum Sn of first n terms is given by. अब ये तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक arithmetic progression है और उसके पहले 100 terms का आपने sum find करना है, तो वो 1 by 1 100 terms आप ऐड तो नहीं कर सकेंगे ना, मैनुअली आप ऐड करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है. तो इसलिए एक थ्योरम है जो अभी हम प्रूफ करेंगे और इस थ्योरम की मदद से हम डायरेक्टली जितने भी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 100 टर्म्स है, फर्स्ट 200 टर्म्स है, फर्स्ट 500 टर्म्स और फर्स्ट 1000 टर्म्स, तो उनको इजीली आप ऐड कर सकेंगे. फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम Sn ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय, दो फार्मूले हैं, दोनों एक ही हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से रिड्यूस होते हैं. Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a1 प्लस an. दूसरा है n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब दोनों यूज़ करेंगे हम. ये कब यूज़ होगा? अगर आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों नोन हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे. अब अगर फर्स्ट टर्म गिवन है लेकिन लास्ट टर्म an वो अननोन है, देन वी विल यूज़ n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब पहले इसका हम प्रूफ देखते हैं. प्रूफ देखे, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of arithmetic progression is denoted by Sn, और हम a से लिखते हैं ना, sum of first n terms है a1 plus a2 up to an. This is equals to a1 plus a2 की जगह हम लिख सकते हैं ना a1 plus d. a3 की जगह हम लिख सकते हैं a1 plus 2d प्लस अप टू ये an. अब अगेन इस n मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, लेकिन स्टार्ट्स फ्रॉम ये बैकवर्ड, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ. an मैंने पहले लिख दिया, प्लस इसे जो प्रीवियस टर्म होगा ना, इससे पहले जो टर्म होगा दैट विल बी an माइनस डी. सिमिलरली उसके जो बाद टर्म होगा दैट विल बी an माइनस 2d प्लस अप टू, और फाइनली मैं ये लिखता हूँ प्लस a1. इन दोनों को ऐड करें. एडिंग Sn प्लस Sn 2 टाइम्स Sn, a1 प्लस
ए एन, ये ऐड किया, ये दोनों आप ऐड करें तो ये माइनस डी प्लस डी कैंसल, आपके पास क्या आ जाएगा A1 प्लस AN प्लस, सिमिलरली इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो प्लस 2D माइनस 2D कैंसल, आपके पास आ जाता है A1 प्लस AN प्लस अप टू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू A1 प्लस AN। लेकिन ये समेशन जो है दिस इज इन टाइम्स है। अब इन टाइम्स आप A1 प्लस AN को ऐड करेंगे, that is equals to n times A1 plus AN, dividing both sides by 2, क्योंकि मुझे SN चाहिए, दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड किया, n by 2 A1 plus AN, और ये उसका फर्स्ट फॉर्म है जिसको हमने प्रूफ करना था। अब सेकंड फॉर्म, as we know that AN equals to A1 plus n minus 1 into D, ये इसके बराबर है इन ए टर्म ऑफ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर ये पुट करें Sn equals to n by 2 A1 plus AN, लेकिन AN बराबर है A1 plus n minus 1 into D के बराबर, this is equals to n by 2 A1 plus A1 2A1 plus n minus 1 into D। तो ये वो सेकेंड फॉर्म है ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये दो फार्मूले हमारे पास हैं, हम ये दोनों यूज़ करेंगे। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो वी विल यूज़ दिस वन, अगर फर्स्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म गिवन नहीं है लेकिन उसके अल्टरनेट में आपको डी गिवन होगा तो फिर आपने ये सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। अब टोटल हमारे पास फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास 3 फार्मूले हैं, देयर आर 3 फार्मूलाज। एक है द इनर टर्म AN equals to A1 plus n minus 1 into D, एक ये है, और एक है SN का, लेकिन उसके लिए 2 फॉर्म्स हैं, n by 2 A1 plus AN, this is equals to n by 2 2A1 plus n minus 1 into D। ये दोनों या तीनों ये यूज़ होंगे और इन तीनों में 5 कंपोनेंट्स है, एक है A1 AN N D SN, टोटल 5 कंपोनेंट्स, और इन 5 कंपोनेंट्स में से नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो होगा 3 कंपोनेंट्स आपको गिवन होंगे और 2 कंपोनेंट्स मिसिंग होंगे, वो आपने फाइंड करने, और वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।